السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدنا علما يا رب زدنا علما يا رب زدنا علما۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ جی ابھی الاسم الموصول، اس آیت میں سے اسم الموصول والذین، الذی، الذی اور والذین، احسن، الذی اور والذین، یہ اسم الموصول الذی اور والذین۔ ہاں جی حرف عطف حمدان۔ مریم حرف عطف۔ حرف عطف واو، والذین من قبلکم، واو حرف عطف واو۔ حرف الجر ذو الرحمہ، من حرف الجر من۔ ربیہ حرف الجر من، حرف الجر من قبلکم۔ یا ایہا الناس اعبدوا، یا ایہا الناس، یا ایو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پکارنے کے لیے، ندا کے لیے جب کسی کو پکارتے ہیں تو اس کے لیے یا ایو، تو یہ حرف ندا ہے جو استعمال کرتے ہیں۔ یہ اسکرین پہ لائن کتنے لگائی ہے، اسے ریموو کر دیں پلیز۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب کسی کو پکارتے ہیں، مثلا یا ایہا الناس، اے لوگو، الناس، عبد الرحمن راشد، الناس، اسم فعل حرف اسماء۔ الناس کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ ہاں جی اسم اسم ہے، تو اسم کی کون سی ٹائپ ہے اسم جو ابھی ہم نے ہوم ورک بھی کیا ہے؟ اسم بال اسم بال، الف لام کے ساتھ یہ اسم ہے، احسن، اسم بال۔ الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ یا پیپل یا مین کائنڈ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الناس، او مین کائنڈ۔ اعبدو، اعبدو کیا مطلب ہوتا ہے اعبدو؟ عبادت کرو، ہاں اعبدو عبادت کرو۔ فعل ہے، حکم دیا جا رہا ہے، یا ایہا الناس، یا ایہا الناس اعبدو۔ جتنے لوگ ہیں اس دنیا میں، مسلمان کافر، سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم عبادت کرو، اعبدو، تم عبادت کرو، تم عبادت کرو، یہ فعل ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ ربکم، ربکم، ربکم یعنی تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کسے کہتے ہیں؟ بالکل شروع میں پہلی یا دوسری کلاس میں ہم نے رب کیا پڑھا تھا؟ رب کا کیا مطلب ہے؟ کس کو یاد ہے؟ پالنے والا۔ احسن، رب کا مطلب ہے پالنے والا، سنبھالنے والا، پیدا کرنے والا، یعنی پیدا کرنے کے بعد اس کی تمام اپنی مخلوق کی تمام ضروریات کو پوری کرنے والا، اس کو سنبھالنے والا، پالنے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تمام لوگوں کو، اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کو حکم نہیں دے رہا ہے، دنیا میں جتنے لوگ ہیں، مومن ہیں، کافر ہیں، وہ کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، یا جو بھی جس کی نظریات کا حامل ہے، سب کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ سب کو، مومنوں کو، کافروں کو پیدا کس نے کیا ہے؟
अल्लाह ने अल्लाह ने पैदा किया है। तो अल्लाह ताला ने जाके पैदा किया तो अल्लाह ताला ही अब उनको हुक्म करने का इख्तियार रखते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपने रब की इबादत करो। रब्बाकुम, हमदान कितने कलिमात है रब्बाकुम? 3 3 कलिमात है। कौन कौन से? रा बा और कुम। हमदान कह रहा है ये 3 कलिमात हैं। दो दो 2 कलिमात है। कौन कौन से 2 कलिमात है और कैसे हैं? रा राम नहीं रब और कुम। रब और कुम, रब्बा और कुम जमीर है इसके साथ, रब्बा कुम। तो ये जमीर की दूसरी टाइप है जो अभी हमने नहीं पढ़ी, जमीर मुत्तसिल जिसे कहते हैं। तो रब्बा कुम, तो 2 कलिमात हैं, रब्बा और कुम, तुम्हारा रब, यानी तुम्हारा रब। तो या अय्युहन्नास उबुदू रब्बाकुम, ए लोगो इबादत करो अपने रब की। कौन सा रब है? अल्लाजी, अल्लाजी। मरियम, अल्लाजी इस कलमे की कौन सी टाइप है? अहसन, अल्लाजी इसम मौसूल है। इसका मतलब यह है कि तुम अपने रब की इबादत करो। कौन सा रब? अल्लाजी, वो रब जिसने खालाकाकुम, जिसने खालाकाकुम तुमको पैदा किया। वो रब जिसने तुमको पैदा किया। खालाकाकुम, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया। अभी खालाकाकुम कितने कलिमात हैं? खालाकाकुम खालाकाकुम अगेन ये 2 कलिमात, जैसे रब्बाकुम है ऐसे ही खाला का फेल है और उसके साथ कुम, खालाकाकुम तुम्हारा, जिस रब ने तुमको पैदा किया। अल्लज़ी खालाकाकुम, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया। वल्लज़ीना, अब्दुर्रहमान ताहिर, उबैदुर्रहमान ताहिर। वल्लज़ीना कलमे की कौन सी टाइप है? वल्लज़ीना, वाओ और अल्लज़ीना कितने कलिमात हैं और क्या टाइप है दोनों की? मौसूल। ठीक है, कितने कलिमात हैं? 2 कलिमात है। कौन कौन से? वल्लज़ी वल्ला और जीना। रबिया, वल्लज़ीना। हाँ जी रबिया आप बताओ। वल्लज़ीना। वाओ और अल्लज़ीना। रबिया वाओ और अल्लज़ीना। अहसन। रबिया बताएगी वाओ कौन सा कलमा है और अल्लज़ीना? वाव हर्फ अत्फ़ा अहसन और अल्लज़ीना इसम अहसन। वाओ हर्फ अत्फ़ है और अल्लज़ीना इसम मौसूल है। पहले अल्लज़ी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे अल्लज़ीना भी इसम मौसूल है। वल्लज़ीना या अय्युहन्नास उबुदू, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं ऐ लोगो इबादत करो। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बाकुम, जो तुम्हारा रब है। वल्लज़ीना और उन लोगों का भी रब है। मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे। वल्लज़ीना वो लोग, वाओ हर्फ अत्फ़ और अल्लज़ीना इसम मौसूल। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, मिन रमला अहसन, मिन हर्फुल जर है। मिन का मतलब होता है से या फ्रॉम, तो मिन हर्फ जर। मिन क़ब्लिकुम, ज़ुर्रहमा क़ब्लिकुम कितने कलिमात हैं? 2 कलिमात है। कौन कौन से हैं? अहसन, मिन क़ब्लिकुम, क़ब्लिकुम मतलब होता है तुमसे पहले। क़ब्ल पहले और कुम ज़मीर है, यानी तुमसे पहले। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम या अय्युहन्नास उबुदू, ए लोगो तुम इबादत करो अपने रब की। रब्बाकुम, अपने रब की। अल्लज़ी वो रब, खालाकाकुम जिसने तुम्हें पैदा किया। खालाकाकुम। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम और वो लोग जो तुमसे पहले थे उनको, उसको, उन सब लोगों को भी किसने पैदा किया है? अल्लाह ने। तो अल्लाह ने उनको भी पैदा किया, तुम्हें भी अल्लाह ने पैदा किया। तुम अल्लाह की इबादत करो। इबादत क्यों करनी है? लअल्लाकुम, अनीसुर रहमान कितने कलिमात है लअल्लाकुम? 2 कलिमात है। कौन कौन से? लाल्ला और कुम। हाँ ये देखे सब में जमीर वही आ रही है, कुम। जैसे हमने जमीर एक पढ़ी थी, अन तुम जमीर।
हाँ जी, अंतुम अबीहा, अंतुम ज़मीर की क्या तफसील है, किस चीज की ज़मीर है अंतुम, या पिछली क्लास में हम डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। अबीहा, अंतुम सेकंड पर्सन। अहसन, अंतुम सेकंड पर्सन, और इसके अलावा सेकंड पर्सन की 5 ज़मीरें हैं, 5 हमने पढ़ी हैं, उनमें से एक अंतुम है, ये तो ठीक है, अंतुम सेकंड पर्सन है, मजीद क्या तफसील है इसकी? मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए। हाँ, मुज़क्कर के लिए है या मुअन्नस के लिए है या दोनों के लिए? दोनों के लिए। जमा के लिए और जमा के लिए। अंतुम, अंतुम मुखातब या सेकंड पर्सन की ज़मीर है जो कि जमा के लिए है, जमा, और असल में ये फिल असल जो है ये मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए अंतुन्ना, ये मुज़क्कर के लिए या मुज़क्कर मुअन्नस जहां मिक्स आ जाए उनके लिए, लेकिन खाली मुअन्नस के लिए अंतुन्ना अलग से ज़मीर है, ठीक है। अंतुम मुखातब सेकंड पर्सन यानी मुखातब की ज़मीर है अंतुम, और जमा के लिए है, मुफरद या मुसन्ना के लिए नहीं है, और मुज़क्कर के लिए फिर असल में मुज़क्कर के लिए, लेकिन मुज़क्कर के साथ कहीं मुअन्नस भी अगर आ जाती है तो उसके लिए भी अंतुम इस्तेमाल हो सकता है। और अंतुम ज़मीर हमने ये बताया था ये उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, अंतुम ये उसकी फ़ाइली हालत है, जबकि उसकी मफ़ऊली हालत कुम है जो यहाँ पे इसमें इस्तेमाल हो रही है, और ये पूरी आयत में 3-4 दफ़ा आई है, रब्बकुम क़ब्लिकुम लअल्लकुम, ये असल में अंतुम की ही दूसरी फॉर्म है जिसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहते हैं या मफ़ऊली हालत कहते हैं, लअल्लकुम, ठीक है। तो अंतुम ज़मीर जो हमने पढ़ी है वो ज़मीर मुनफसिल थी, सेपरेटली आती है, लेकिन ये ज़मीर इसे हम कहते हैं ज़मीर मुत्तसिल। क्या कहते हैं? ज़मीर मुत्तसिल। मुत्तसिल का मतलब ये है कि ये किसी इसम या फेल के साथ मिल के आती है, अलग से, जैसे अंतुम अलग से आते हैं वैसे ज़मीर नहीं आती, तो ये मफ़ऊली हालत में है, उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। हो जाओ अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, अच्छे लोगों में शामिल हो जाओ। तत्तकून, तत्तकून फेल है, और इसका मतलब है कि परहेजगार हो जाओ। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। या अय्युहन्नास, ए लोगो, उअबुदू रब्बकुम, तुम इबादत करो अपने रब की, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने पैदा किया तुमको, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम बच सको, ताकि तुम अच्छे लोगों में शुमार हो। ए लोगों, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है। ओ मैनकाइंड, वर्शिप योर लॉर्ड who is Allah, who created you and those who were before you so that you may acquire taqwa। क्लियर है? कोई क्वेश्चन इस आयत में? किसी को समझ नहीं आई कोई चीज? इस आयत के नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला उसी आयत को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, लअल्लकुम तत्तकून, उसके बाद अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशन, ये भी वही आयत। अल्लज़ी यहाँ पे जो है, अल्लज़ी इसम मौसूल है, ये कनेक्ट कर रहा है पिछले जुमले के साथ। पिछले जुमले में अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उसी आयत की कंटिन्यूएशन है कि रब्बकुम, तुम्हारा रब वो है, अल्लज़ी, जिसने जअल लकुमुल अर्द फिराशन वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस समाई माअन। जअल लकुमुल अर्द फिराशन यानी बनाया तुम्हारे लिए जमीन को, फिराशन फर्श, वस्समाअ बिनाअन और आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया, व अंज़ला मिनस समाई माअन और आसमान से नाज़िल किया क्या, माअन पानी को, फ़अख़रज बिही मिनस समराति, फ़अख़रज बिही तो उस पानी के जरिए निकाला, मिनस समरात फल फ्रूट्स, रिज़्क़न लकुम जो तुम्हारे लिए क्या है, रिज़्क़ हैं, फला तजअलू लिल्लाह, तो जब अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, तुम्हें पैदा किया, पैदा करने के बाद इस जमीन पे, जमीन के ऊपर तुम्हें, जमीन को तुम्हारा बिछोना बना दिया, जिस जमीन के ऊपर आप रहते हैं,
چلتے پھرتے ہیں، والسماء بناء، اور آسمان تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے، اور آسمان سے پانی نازل کیا ہے جس سے تمہیں پھلوں کے ذریعے رزق عطا کیا ہے۔ تو پھر اللہ کا کیا حق ہے؟ فلا تجعلوا للہ، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے اندادن کوئی بھی شریک۔ انداد جمع ہے ند کی، اس کا مطلب اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا کہلاتا ہے۔ ہم نے پہلے سورۃ فاتحہ کے اندر پڑھا تھا توحید کو، تو یہ توحید کے منافی ہے۔ اندادن، انداد جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، شرک کرنا توحید کے منافی ہے۔ انسان اگر توحید شرک کرے گا تو وہ توحید کو چھوڑ دے گا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ تو شروع میں پہلے لیکچر میں یا دوسرے لیکچر میں سورۃ فاتحہ کا جب ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے توحید کی کچھ قسمیں بیان کی ہیں۔ کسی کو یاد ہے توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی کتنی ٹائپس ہم نے ڈسکس کی تھی؟ دو، ایک آنسر ہے جی؟ تین۔ ہاں جی، اور کوئی آنسر؟ توحید کی تین ٹائپس تھی، توحید کی تین قسمیں تھی۔ کون کون سی؟ نمبر 1 کون بتائے گا؟ توحید کی فرسٹ ٹائپ، پہلی قسم الوہیہ، توحید الالوہیہ، یہ دوسری ٹائپ ہے۔ چلے یہ ایک قسم ہوگی، الربوبیہ، ہاں توحید الالوہیہ۔ الربوبیہ، ہاں جی، آواز نہیں آ رہی صحیح، حمدان سکرین پہ مت لکھیے۔ الربوبیہ، الربوبیہ، اور تھرڈ ون؟ الاسماء والصفات۔ تو توحید کی ہم نے تین قسمیں بتائی تھیں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ اپنی عبادت کے اندر، اپنی تخلیق کے اندر، اپنے رب ہونے میں، اس دنیا کو پیدا کرنے میں، اس لوگوں کو رزق دینے میں، اور اللہ کی عبادت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی کسی کو پیدا کر سکتا ہے، نہ رزق دے سکتا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ تو ہم نے کہا تھا توحید کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ توحید الربوبیہ، یعنی اللہ تعالیٰ رب ہونے میں اکیلا ہے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رازق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے، یہ ارض و سماوات، زمین، یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ نے عطا کی ہیں، تو اللہ ہی ان کا مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ان کا مالک نہیں ہے۔ تو اسے کہتے ہیں توحید الربوبیہ، یعنی اللہ کے رب ہونے میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ رب صرف اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد اپنی مخلوق کو رزق دیتا ہے، زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھلوں کا رزق دیا ہے، ہر قسم کا لباس عطا کیا ہے، نعمتیں عطا کی ہیں، اور اللہ ہی ان چیزوں کا مالک ہے۔ تو چونکہ اللہ مالک ہے، اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں توحید الربوبیہ، یعنی اللہ کے رب ہونے میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ توحید الربوبیہ کی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو ابھی پوچھ سکتے ہیں، نیکسٹ کلاس میں اس سے کویسچن ہوگا۔ توحید کی تین قسمیں ہیں۔ توحید الربوبیہ، ہاں جی سمجھ آ گئی ہے؟ عبد الرحمن طاہر، کیا مطلب ہے توحید الربوبیہ کا؟ اللہ پالنے والا ہے اللہ پالنے والا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے۔ ہاں جی اللہ پالنے والا اکیلا ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی بھی پالنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی رب نہیں ہے۔ ہاں جی رملہ، ابیحہ، حمدان، سمجھ آ گئی ہے توحید الربوبیہ کی؟ ہاں، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، نیکسٹ کلاس میں اس سے کویسچن ہوگا۔ تو توحید الربوبیہ یہ توحید کی پہلی قسم ہے۔ توحید کی دوسری قسم کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں توحید الالوہیہ۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ کس کو پتا؟ الہ، لا الہ الا اللہ، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ الہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ صرف ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ تو توحید الربوبیہ ہم نے کہہ دیا نا، اللہ ایک ہے۔ تو الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الہ کسے کہتے ہیں؟
ला इलाहा इल्लल्लाह। इलाह कलिमा जो इलाह है इसमें, इसका मतलब किसको पता है? इलाह का मतलब होता है माबूद, जिसकी इबादत की जाए। इबादत क्या चीज है? कोई भी काम हम जब किसी की रजा के लिए करते हैं उसको इबादत कहा जाता है। मसलन हम नमाज पढ़ते हैं, क्यों नमाज पढ़ते हैं? ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी हो, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, लिब्तिगाए वजहिल्लाह। तो ये इबादत है। दुआ करना, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह की इसमें रजा है, ये इबादत है। इसी तरह रोजा रखते हैं, क्यों रोजा रखते हैं, क्यों भूखे प्यासे रहते हैं? क्यों? ताकि अल्लाह राजी हो जाए, तो ये इबादत है। सजदा करते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए सजदा करना इबादत है। रुकू करना इबादत है। सदका खैरात करना इबादत है। हज इबादत है। उम्रा करना इबादत है। इस तरह ज़कात देना, ये सारी इबादत है। तो कोई भी नेकी के काम हम जब किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो क्यों करते हैं? ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह के बंदों के साथ, वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ अगर हम झूठ नहीं बोलते तो क्यों झूठ छोड़ते हैं? ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। तो जो भी काम अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए किया जाता है, वो इबादत है। और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत करना जायज नहीं है। इसे हम कहते हैं तौहीद अल उलूहिया। उलूहिया इलाह से है। इलाह का मतलब होता है माबूद, जिसकी इबादत की जाए। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह के अलावा कोई ऐसी जात नहीं है जिसकी इबादत की जाए। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना जायज नहीं है। तो रोजा रखना इबादत है, तो अल्लाह के अलावा किसी के लिए रोजा नहीं रखा जा सकता। सजदा इबादत है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं किया जा सकता। इसी तरह तवाफ इबादत है, अल्लाह के अलावा किसी के लिए तवाफ नहीं किया जा सकता। रुकू करना इबादत है, अल्लाह के अलावा किसी के सामने रुकू नहीं किया जा सकता। गर्द के जितने काम इबादत में शामिल हैं, जो भी इबादत हैं, अल्लाह के अलावा किसी के लिए करना जायज नहीं है। इसमें अल्लाह वाहिद है जिसकी इबादत की जाती है। ऐसे हम कहते हैं तौहीद अल अल उलूहिया। इलाह से तौहीद अल उलूहिया, अल्लाह इलाह होने में एक है, वाहिद है, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद, कोई इलाह वर्शिप के काबिल नहीं है। तो समझ आ रही है दूसरी टाइप तौहीद अल उलूहिया का क्या मतलब है? कौन बताएगा क्योंकि क्या मतलब है तौहीद अल उलूहिया? कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। रोजा अहसन। तो जैसे अल्लाह इस के लिए कायनात रखना को, हाँ जी, चाहिए पैदा, और ईमान के अहसन, जैसे अल्लाह ताला इस कायनात को पैदा करने में अकेला है, रिज़्क देने में अकेला है, इतनी नेमतें दी हैं, खालिक मालिक राज़िक है। तो जब अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने हमें रिज़्क दिया है, अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, तो अल्लाह का हक है कि अल्लाह ही की इबादत की जाए, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना की जाए। तो अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह रब है, तो उसे तौहीद ar-रुबूबिय्या कहेंगे। और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। अल्लाह को इबादत में वहदहू ला शरीक हम कहते हैं, इसे तौहीद अल उलूहिया कहते हैं। तौहीद की तीसरी किस्म तौहीद अल अस्माई व सिफात। तौहीद अल अस्मा व सिफात, लहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के कुछ अस्मा हुस्ना है। जैसे अल्लाह के कुछ नाम आप लोगों ने याद किए होंगे, वस्समी, अल बसीर, अल हकीम, तो अल मालिक, अल कुद्दूस, तो ये सारे अल्लाह के नाम हैं। तो ये अल्लाह ताला अपने नामों में भी, और जो अल्लाह ताला की सिफात हैं अस्सम वल बसर, उनमें भी अल्लाह अकेला है, उसको इन सिफात में किसी दूसरे को शरीक हम नहीं कर सकते। तो मुख्तसर ये है कि तौहीद की तीन किस्में हैं, तौहीद ar-रुबूबिय्या, दूसरी तौहीद अल उलूहिया, तीसरे नंबर पर तौहीद अल अस्मा व सिफात। तो तौहीद के मुनाफी शिरक है। जो बंदा तौहीद पे नहीं है, जो अल्लाह को एक नहीं मानता, उसके अलावा किसी की इबादत करता है, तो वो क्या करता है? शिरक करता है। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया फला तजअलू लिल्लाह, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन। तो अल्लाह के अलावा, अल्लाह के साथ किसी को भी अंदाद या शरीक ना बनाओ। अंदाद यानी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो। व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो। तो इस आयत के अंदर इस्म अल मौसूल, मरियम इस्मुल मौसूल,
अहसन, अल्लज़ी, जो कलिमा अल्लज़ी है वो इस्म मौसूल है। कोई और इस्म मौसूल है इसमें, कौन बताएगा? इसमें एक ही इस्म मौसूल है, हाँ। हरफ आत्फ। हमदान, हरफ आत्फ कौन सा है इसमें? अबीहा, हरफ आत्फ। मिनस समानी, वाव, व अंजला, वस्समाई, वाव वस्फिराशम वस्समाई, ये वाव जो है वस्समाई बिनाअन, व अंजला दूसरा वाव ये आ गई है, ये वाव हरफ अत्फ है, हरफ अत्फ है। वाव के अलावा और कौन सा हरफ अत्फ है? रमला, वाव के अलावा हरफ अत्फ। फा, अहसन, फा अखरजा व अनज़ला मिनस समाई माअन, फा अखरजा, जो फा है हरफ फा, ये भी हरफ अत्फ है। तो इसमें दो हरफ अत्फ, फला तजअलू, यहाँ पे फा जो है ये भी हरफ अत्फ है, एक वाव और एक फा। हरफुल जर, रबिया, हरफुल जर من मिन, अहसन, इसमें एक हरफ जर मिन है। नेक्स्ट, बिनान बिनान में तो कोई हरफ जर नहीं है, कहाँ हरफ जर? बिनान तो अन, आखिर में तनवीन आ रही है, तो तनवीन जिसके ऊपर हो वो क्या होता है? हरफ जर मिन, इसम हाँ वो इसम होता है। अहसन, बिनान तो इसम है, तो हम हरफ की बात कर रहे हैं। ये मिनस समराती, मिन जो है, मिन ये हरफ अत्फ है। मिनस समाई, मिन हरफुल सॉरी हरफुल जर है। मिनस समाई, मिन हरफ जर है। मिनस समराती, मिन हरफ जर। अस्मा, इसके अलावा हरफ जर कौन सा है? मिन के अलावा कुछ और हरफ जर भी है इसमें। अस्मा, ज़ुर्रहमा, वअंज़ला, व अनज़ला में हरफ जर नहीं है कोई भी हरफ जर। हाँ जी, वअंज़ला मिनस समाई, इसमें हरफ जर कहाँ पे है? मिन, मिन, मिन तो बता चुके हैं। मिन के अलावा ज़ुर्रहमा, मिन के अलावा कौन सा हरफ जर है? उधर है ही भी हाँ। नहीं। फी फी कहाँ पे? किस आयत पढ़ो, कौन सी आयत में फी है? यहाँ पे अखरज फा, तो हम कह चुके हैं हरफ अत्फ है, वो फी तो नहीं है। अखरज फा हरफ अत्फ है, हरफ जर, हरफुल जर बताना है। अब्दुर्रहमान ताहिर, अब्दुर्रहमान ताहिर, हरफ जर। बिही बिही, बिही में हरफ जर कौन सा है? बा, बा बा हरफ जर। अहसन, एक हरफ जर मिन है और दूसरा हरफ जर बा है। अहसन, इसके अलावा एक और हरफ जर है, कौन बताएगा? बा और मिन के अलावा हरफुल जर। आवाज नहीं आ रही। लाम, लाम, अहसन, लाम, अहसन। रिज़्क़ल्लाकुम और लिल्लाही, लिल्लाही फला तजअलू लिल्लाही, ये लाम जो है ये हरफ जर है। तो इस आयत के अंदर एक हरफ जर मिन है, उसके बाद दूसरा हरफ जर जो है वो बा है, और उसके बाद तीसरा हरफ जर लाम है। तो तीन हरफ जर इस आयत के अंदर मौजूद हैं। हाँ जी, अल इस्म बि अल, इस्म बि अल। मरियम, जल्दी से, इस्म बि अल। अस्समा, अहसन, इस्म बि अल अस्समा। हमदान, नेक्स्ट। अल-अर्ज़ी अल-अर्ज़ा अल अर्द, अहसन। अबीहा, नेक्स्ट। अल अर्द, अस्समा, अस्समा या
जी जी अस्समरात अहसन अस्समाई अस्समरात और कोई है मा अन इसम बे अल नहीं है उसमें तनवीन है तो मा अन तो अस्समा उसके बाद अल इसम बे तनवीन मा अन इसम बे तनवीन मा अन रबिया इसम बे तनवीन रिस्कन रिज़्क़न अस्मा रिज़्क़न इसके अलावा अस्मा अंदादन अहसन अंदादन अब्दुर रहमा फिराशन बिनाअन माअन रिज़्क़न और उसके बाद है अंदादन अंदादन अल्लज़ी ये हम पहले पढ़ चुके हैं अल्लज़ी इसम मौसूल है इसमें एक चीज जो है अच्छा इस आयत में ज़मीर कौन सी है कौन बताएगा इस आयत में ज़मीर हमदान व अंतुम व अंतुम ठीक है बिही अंतुम ज़मीर जो है जो ज़मायर हम पढ़ चुके हैं ज़मायर मुनफसिला उनमें से अंतुम अभी इसको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ये जमा मुज़क्कर और मुखातब की ज़मीर है अल्लज़ी अल्लज़ी इसम मौसूल है कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा अल्लज़ी वो जो जिस अल्लाह ने जअला जअला यहाँ पे फेल है जअला जिसने बनाया जअला का मतलब क्या होता है बनाना अल्लज़ी जअला जिसने बनाया ये फेल है लकुमुल अर्दा लकुम लकुम कितने कलिमात हैं हमदान लकुम कितने कलिमात हैं दो लाम और कुम अहसन लाम और कुम तो इसमें लाम हर्फ जार है और उसके बाद कुम ज़मीर है जैसे हमने पहले बताया था अंतुम की ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है कुम मफूली हालत है लाकुम अल अर्दा ये हम पहले बता चुके हैं ये अल अर्द का मतलब होता है ज़मीन अल अर्द किसे कहते हैं अर्थ को तो इसम बि अल है फिराशन फिराशन इसम बितनमीन है फिराशन का मतलब होता है फर्श क्या मतलब है फिराशन का फर्श या बिछोना जिसके ऊपर हम बैठते हैं या नीचे रेस्टिंग प्लेस जिसे हम कह सकते हैं तो ये फिराशन व समा क्या मतलब होता है समा का आसमान वाओ हरफ अत्फ है और अस्समा इसम बि अल है बिनाअन बिनाअन का क्या मतलब है बनाया बनाया नहीं वो तो जाला का मतलब बनाया है बिनाअन बिना कहते हैं छत को बिनाअन जो ऊपर छत होती है आपकी जो आसमान को छत का है ना अल्लाह ने फर्श जमीन को फर्श क्या है जो नीचे होता है जिसके ऊपर बैठते हैं वो फर्श है और जो ऊपर आपके होता है वो छत होती है बिनाअन का मतलब होता है छत तो ये इसम मुनव्वर है इसम बितनवीन है वो अनज़ला वाओ हरफ अत्फ है और अनज़ला का मतलब होता है नाज़िल करना अनज़ला उतारना ऊपर से नाज़िल करना सेट डाउन मिन हरफ जार है हम पहले पढ़ चुके हैं इसका मतलब होता है फ्रॉम या से व अनज़ला मिनस समाई आसमान स्काई अगेन आसमान से अल्लाह ताला ने क्या उतारा मा अन क्या मतलब है मा अन पानी वाटर ठीक है आसमान से पानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उतारा फ़अख़रजा हमदान कितने कलिमात हैं दो फा और फा कौन सा कलिमा है फा अबीहा फा कौन सा कलिमा है अबीहा हरफ अत्फ है फा वाओ और फा भी हम पिछले पढ़ चुके हैं आज के शुरू में जब हमने इस्तेमाल किया फा हरफ अत्फ है फ़अख़रजा फिर निकाला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिही उसके साथ अभी टाइम खत्म हो रहा है तो किसी का कोई क्वेश्चन तो कर सकते हैं
इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो 1 मिनट टाइम बाकी है, इसमें आप कर सकते हैं. क्या अलामत है? इस चीज की फेल की, फेल इंशाल्लाह अगली क्लास में हम फेल